Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the employability skill. Into the employability skill, there are different types of chapter we discussed in the previous classes, like communication skill, self management skill, basic ICT skill, entrepreneurship skill, and the green skill. So in this chapter we have to just learn different types of things related to the chapters. We just learn about the communication, how many types of communication, self management, that means how to improve ourselves, like a basic ICT, that is related to our computer system and the operating systems also, and the entrepreneurship skill, that how to just develop a startup, how to develop a new thoughts, how to develop a new business. So into this chapter, and the green skill that are related to completely the नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इस चीज़ों के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने इस ग्रीन स्किल चैप्टर में सीखा। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। अब हम लोग जानते हैं, आप लोग चलते हैं हम लोग पार्ट बी की साइड, पार्ट बी की तरफ चलते हैं हम लोग। दैट आर अ वोकेशनल स्किल। ये क्या है? ये एक वोकेशनल स्किल है। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, दैट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग. So how to use the word processing? You know about the word processing, that means it is creating a document, creating a text document. Into the word processing software, we have to just create the टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस में. इससे पहले हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर का एक सॉफ्टवेयर पढ़ रखा था, दैट इज़ एम एस वर्ड. एम एस वर्ड इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. एम एस वर्ड भी जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ओपन ऑफिस राइटर के बारे में. ओपन ऑफिस राइटर क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखते हैं. तो ऑलमोस्ट जो वर्ड प्रोसेसिंग के, चाहे वो एम एस वर्ड हो, चाहे वो ओपन ऑफिस राइटर हो, कोई भी हो, तो दोनों में ऑलमोस्ट कमांड सेम होते हैं. थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है. तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या चीज़ें इसमें हैं, उसके आगे चलते हैं हम लोग. ना वर्ड प्रोसेसर, यू नो अबाउट द वर्ड प्रोसेसर, दैट इज़ यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट, एंड इनटू द डॉक्यूमेंट वी हैव टू यूज द textual matter. We have to just add the charts, we have to just add the pictures. So different types of things we have to just add into the word. ठीक है, word processor. So now there are some features of the word processor. अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या features होते हैं word processor के. So now that is fast. Fast, that means कि typing text in the word becomes very fast. You can just type the text into a very speedy manner. ठीक है, आसानी से और बहुत ही स्पीड से इसमें टाइपिंग हो सकती है. नाउ द एडिटिंग फीचर्स, so any types of corrections, deletion, modifications can be made easily. ठीक है, into the word processor. इस word processor में, that means into the open office writer, it is easy to correction. उसमें क्या होता है? करेक्शन बहुत ही आसान होता है. Now permanent storage. So into the word processor document can be saved a long time. You when you save that document, then it is used for a long time. ये क्या होगा? बहुत ही लंबे समय तक हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली सेव है. अगर हमने इसे हार्ड डिस्क में सेव कर दिया तो ये हमेशा के लिए सेव रहता है, और कभी भी हम अगर चाहें आज से 100 साल बाद भी उसे यूज़ करना, तो वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. So now next one, that is the formatting features. So formatting features, you all know about that. Formatting features, that means it is related to the different types of formatting, like a general formatting and some complex formatting. Like a general formatting, that means you know about that. Bold, italic, underline, there are different types of general formatting tools, like image setting, image size, font setting, alignment setting. So there are different types of formatting features. So formatting, that means ki when you just format something, then it will it presents look wise very attractive. You all know about that. Formatting, that means it's change the appearance of the text. इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट का जो अपीयरेंस होता है लुक वाइज, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे चेंज करने के फीचर्स हैं. हम लोग प्रैक्टिकली भी जब देखेंगे तो देखेंगे उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं. नाउ द ग्राफिक्स. Most modern word processor provides a facility of incorporating drawings in the
डॉक्यूमेंट विथ इनहांस इट्स यूजफुलनेस. सो इसमें क्या होता है, ये ग्राफिक्स भी होता है. दैट मीन्स कि वी कैन ड्रॉ some shapes, we can draw some images, we can insert some images. So that is the graphics features. Graphics feature के through हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. Now OLE features, that means it's a linking feature, object linking, embedding. That means it is generally used for the linking the chart, equations, video clips, audio clips. These are used for the linking the some videos, mp3s, some charts also. यानी कि एक चीज़ से जैसे हम अगर चार्ट इंसर्ट करते हैं तो चार्ट की जो एंट्री होती है वो एक्सेल से होती है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक जो वर्ड है वो क्या इस्टेब्लिश किया, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया किसके किसके बीच, हमारे वर्ड प्रोसेसर और चार्ट के बीच, दोनों के बीच क्या किया, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ओएलई. दैट मीन्स इट क्रिएट्स द लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. ये क्या करता है, लिंकिंग और एम्बेडिंग क्रिएट करता है. Now spell check, it is the one of the feature that is used to check the spelling of the word, while the spelling will be wrong, then it will be check the spelling also, and it has a facility to correct automatically or manually. इसके पास फैसिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली और मैनुअली भी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकता है. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड दैट पर्टिकुलर रॉन्ग वर्ड इनटू योर डिक्शनरी. इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे, आगे फिर से टॉपिक होगा तो फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स. सो दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसर. नाउ द मेल मर्ज इज also a features of this word processing software. And into the mail merge we can send the same mail to the multiple recipients. हम लोग multiple recipients को same mail को अगर multiple recipients को forward करना है, that time we use the mail merge feature. उस समय हम लोग क्या करते हैं, mail merge feature का इस्तेमाल करते हैं. So these are the some features that are used into the word processor. ये सारे features है जो हम लोग word processor में use करते हैं. Now the next one, that is a working with word processor, working with writer word processor. That means writer, that means open office writer. The name is open office writer. हम लोग word processing का ये किस कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं, ओपन ऑफिस राइटर. सो हम लोग देखते हैं कि राइटर के साथ हम लोग कैसे काम करते हैं. तो फर्स्ट वन दैट इज़ अ क्रिएटिंग और ओपनिंग डॉक्यूमेंट. हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. टाइपिंग टेक्स्ट इन इट, हम लोग कैसे टेक्स्ट को टाइप करते हैं ये भी देखेंगे. नाउ एडिटिंग द डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर डॉक्यूमेंट का एडिटिंग होगा तो वो भी ज़रूरी है करना, वो भी हम लोग करते हैं. नाउ सेविंग द डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज़. दैट मीन्स कि अगर हमें फ्यूचर में कभी भी उस डॉक्यूमेंट को यूज करना है, सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट सेव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, सेव दैट पर्टिकुलर ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना जरूरी होता है, तो हम उसे क्या करेंगे, सेव भी कर देंगे. क्लियर है. नाउ पार्ट्स ऑफ मेन विंडो ऑफ राइटर वर्ड प्रोसेसर. अब हम लोग देखते हैं कि ये जो राइटर है एम एस ऑफिस ओपन ऑफिस राइटर जो है, उसका मेन विंडो में कौन कौन सी चीज़ें होती है. जैसे हम लोग एम एस ऑफिस पढ़ते थे तो उसमें मेन विंडो में क्या होता था कि रिबन होते थे, टैब्स होते थे, दैट कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड. तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है. इट कंटेन्स द मेनू बार्स एंड ऑल द कमांड्स रिलेटेड टू द ओपन ऑफिस राइटर दैट आर इन टू द मेनू बार और द स्टैंडर्ड टूल बार ऑल्सो. सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे. फिर हम लोग कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है, मीनू बार क्या होता है, कौन सा मीनू बार में क्या चीज़ें होती है, हम लोग इसके बारे में भी आगे देखते रहेंगे. सो इनटू द open office writer there are different types of menus and that contains the different types of toolbar. We have to just discuss about the some front screen that are appeared while we opening the open office writer. हम लोग फ्रंट स्क्रीन देखें कि फ्रंट स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें होती है. मीनू बार होता है, टाइटल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, रूलर बार होते हैं, स्टेटस बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, एंड देयर इज ऑल्सो अ वर्क एरिया. सो देयर आर different types of things that are appear into the word process open office writer. So the title bar that display the title of the डॉक्यूमेंट, वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल और नेम जो होता है वो डिस्प्ले करता है टाइटल बार में. इट्स अपर साइड ऑफ द स्क्रीन. ये क्या होता है, सबसे अपर साइड में जो होता है वहाँ पे स्क्रीन होता है. और उसी टाइटल बार में देयर आर टू थिंग्स, वन थिंग दैट इन द राइट साइड ऑफ द पैनल देयर इज द 3 बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड द क्लोज. यू कैन जस्ट minimize the particular
word processor, there is a minus, and the maximize there is a square, double square, and cross, that is a close the document. So again into the menu bar, and that menu bar contain the all types of commands related to the open office writer. ये जो सारे जितने भी कमांड्स होते हैं वो ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड, वो सारे के सारे मीनू बार में होते हैं. नाउ फॉर्मेटिंग टूल बार. सो फॉर्मेटिंग टूल बार, दैट मीन्स द टूल बार कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल फॉर्मेटिंग, जनरल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स like font style, font size, bold, italic, underline. So these are the some like formatting toolbars. Now standard toolbar. So into the standard toolbar there are different types of tools related to the word processor, open office writer, sorry, open office writer. इस open office writer से related जितने भी कुछ standard toolbars होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, दिखते हैं. Now ruler you all know about that is a scale. You know about the scale. जो स्केल मैनुअल स्केल होता है जो सबके पास होता है, मैथमेटिकल स्केल जिसको बोल सकते हो किसी भी चीज़ को नापने के लिए. सो रूलर, तो यहाँ भी जो होता है रूलर का इस्तेमाल होता है पेज के साइज़ को देखने के लिए. हम टेक्स्ट कहाँ से शुरू कर रहे हैं इस साइज़ को देखने के लिए. सो रूलर बार इज ऑल्सो सेट द अलाइनमेंट ऑफ द लाइक पर्टिकुलर टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट के जो होता है अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम लोग रूलर बार का इस्तेमाल करते हैं. नाउ स्टेटस बार. सो स्टेटस बार, दैट मीन्स इनटू द स्टेटस बार इट शोज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट का जो है स्टेटस शो करता है. दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट इज इन एडिटेबल मोड और इन अ रेडी मोड. डॉक्यूमेंट क्या होता है, या तो एडिटेबल मोड में है या रेडी मोड में है, कौन से मोड में है ये उसके मोड को शो करता है. नाउ स्क्रॉल बार, इट इज़ यूज टू व्यू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द एक्टिव विंडो. ये क्या करता है, स्क्रॉल बार के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो विंडो हम लोग ओपन कर रखे हैं उसके बाकी सारे एरियाज़ को देखने के लिए, जो हिडन एरियाज़ हैं, ठीक है. जब कोई एरिया जो होता है अपने जो वर्किंग एरिया से बड़ा हो जाता है, अपने वर्किंग स्पेस से बड़ा होता है, तो वहाँ पे स्क्रॉल बार अपीयर हो जाता है. दैट मीन्स कि वी कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट and see that area that are not display into our screen firstly. Now the work area where we can just work, where we can write the text, where we can create the drawings, where we can draw the text, where we can draw the shapes also. So this is the work area where we can work something. That means the work performing into that particular area. कोई भी text लिखना हो, कोई भी image लिखना हो, कोई भी इमेज ड्रॉ करना हो, कोई भी शेप्स ड्रॉ करना हो, तो हम लोग वर्क एरिया में ये सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं. सो ये सारे थे जो एक ओपन ऑफिस राइटर है उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स उस सॉफ्टवेयर में जब हम ओपन करते हैं तो जो दिखते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है. तो यहाँ तक क्लियर है होगा सबका आई थिंक. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट व्यू. उसके बाद अगला है डॉक्यूमेंट व्यू. तो डॉक्यूमेंट व्यू के क्या होता है जनरली, दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इनटू द डॉक्यूमेंट. लाइक अ फर्स्ट वन दैट इज़ अ प्रिंट लेआउट, second web layout, and third full screen. So this is the view. Through the view we can just see the document into the different types of manner, like print layout. So it is just see that particular document in a printable mode. ये क्या करता है, उस document को printable mode में display करता है. So इसे हम लोग बोलते हैं print layout document view. Now the web layout, that web layout shows the document into online, in a way it will be appear into online ये कैसे appear होता है, ठीक है. वेब लेआउट व्यू ये दिखाता है उस डॉक्यूमेंट का. नाउ फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट व्यू. फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है, इनटू द फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट व्यू ऑल द फॉर्मेटिंग टूल बार्स एंड द मेनू बार्स विल बी हिडन एंड द डॉक्यूमेंट सो इनटू द अ फुल स्क्रीन. ये जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है पूरे के पूरे स्क्रीन में शो कर जाता है, बाकी सारे टूल बार्स क्या होते हैं हाइड हो जाते हैं. तो ये होता है जनरली फुल स्क्रीन व्यू. नाउ हाउ टू चेंज डॉक्यूमेंट व्यू. हम लोग डॉक्यूमेंट व्यू को कैसे चेंज करते हैं. सो नाउ जस्ट सेलेक्ट द व्यू मेनू एंड चूज द डिजायर्ड ऑप्शन. वहाँ पे क्या करना है, हमें व्यू में जाना है और वहाँ पे हमें अलग अलग लेआउट्स है वो हमें चूज करना है, ठीक है. सारे लेआउट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो अपने लेआउट्स हैं उसे चुन लेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्रिएटिंग
opening and saving a document. That means ki how to create a document, how to open an existing document, and how to save a document. So into this topic we have to just discuss about these things. So first one, that is a creating a document. So हम लोग document कैसे create करते हैं. So before that creating a document we have to just discuss about the how to open office writer. हम लोग सबसे पहले इसे open कैसे करते हैं उसके बारे में देख लें. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं. सो सबसे पहले देखें ओपन कैसे करते हैं. तो ओपन कैसे करेंगे हम लोग. सो फर्स्ट द सेम थिंग, दैट इज जस्ट गो टू द स्टार्ट मेनू एंड देयर इज option, there is all program option, and when go to the all program, that is in the Windows 7. जिसके पास Windows 7 है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, फिर 10 के लिए बताऊँगा. ठीक है. तो 7 में क्या करना है, हमें स्टार्ट बटन में जाना है, देन ओपन ऑफिस राइटर में जाना है. ठीक है. ओपन ऑफिस सॉरी ऑल प्रोग्राम में जाना, ऑल प्रोग्राम में जाना है. और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद ठीक है, वहाँ पे होगा एक ओपन ऑफिस राइटर का एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा. इस ओपन ऑफिस राइटर के फ़ोल्डर में क्या करना है, वहाँ पे जाना ओपन ऑफिस राइटर में, ओपन ऑफिस 4.1.7 यानी जो भी वर्सन अपलोड करोगे वो वर्सन उस फोल्डर में क्लिक करेंगे. एंड देन देयर इज़ ऑप्शन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर. वहाँ पे एक ऑप्शन होगा ओपन ऑफिस राइटर का. सो नाउ क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस राइटर. उस पर क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है. जैसे ही हम ओपन ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे, देन अ विंडो विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन दैट कंटेन्स द different types of options, different types of softwares like open office impress, open office writer, base, open office base, open office cal. So there are different types of software that are appear into your screen when you click on the open office writer. And then you can choose the like a text document. वहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है. ठीक है. जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो हमें चूज कर लेना है. एंड नाउ जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा. और अदरवाइज़ अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे वर्ड प्रोसेसर पे, तो हम डायरेक्टली हमारा वर्ड प्रोसेसर ओपन हो जाएगा. दूसरा प्रोसेस है एक कि हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे, अगर हम लोग स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे और डायरेक्टली ओपन ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ओपन ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा. बट ये जो ऑप्शन है मैंने जो अभी बताया वो कहाँ आता है, जब हम हमारे डेस्कटॉप पे जो आइकॉन होगा, उस डेस्कटॉप पे आइकॉन पे जब ओपन ऑफिस राइटर का एक आइकॉन होगा, उस आइकॉन पे जब हम क्लिक करेंगे देन ये सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे. दैट मीन्स कि ओपन ऑफिस बेस, कैल, लाइक ओपन ऑफिस राइटर, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे. अब बात करते हैं ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए 10th की, विंडोज़ 10th की. विंडोज़ 10 में हम लोग कैसे ओपन करेंगे इसको. सो नाउ अगेन the first thing that is just into the desktop there is an icon of the open office writer. You can just double click on the icon, then window appear. You have to just choose the software according to your need, like open office writer, then you can choose the text document. When like presentation, then you can choose the impress. So there are different types of softwares that are appearing to your screen. And the another process, that is go to the same thing, start menu, and there is a all apps option. So you can click the all apps option. There is now some install program, that is just go to the open office 4.1.7, that is the version, and you can click on that version. And after that all the software related to that particular open office package appeared into your panel, and choose the like open office writer and click on it, then it will be appear into your screen. तो क्या होगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा. तो ये है ओपन करने का तरीका जो हम लोगों ने देखा. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट हाउ टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट. हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, हम लोग इसके बारे में अब देखेंगे कि क्रिएट करने के क्या तरीके हैं. सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट गो टू द फाइल मीनू, दैट आर इनटू द मीनू बार. सबसे पहले फाइल मीनू में जाएंगे जो कि मीनू बार में होता है. ठीक है. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल मीनू, देन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी अपीयर, ड्रॉप डाउन मीनू विल बी अपीयर. देयर इज ऑप्शन ऑफ न्यू. वहाँ पे क्या होगा, एक न्यू का ऑप्शन होगा. नाउ क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. जैसे ही हम लोग न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन क्या होगा, द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन. जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा वो हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा. एंड द शॉर्टकट की, दैट इज़ द कंट्रोल प्लस न्यू. जब भी हमें अगर शॉर्टकट की से हमें इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द कंट्रोल
प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन को हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। तो आई होप कि सबको क्लियर है, सबके समझ में आ रहा होगा। Now the text area. So text area, that means into the text area we have to just enter the text. That type of area where we enter the, where we write the or type the text, वो area जहाँ पे हम लोग text को लिखते हैं, टाइप करते हैं, that is a text area, वो text area कहलाता है। Now the next topic, that is a word wrap and the enter key. So word wrap, you all know about that. Word wrap, that means it is a feature of the word processor that is used to just when the text will be appear into the like out of area, then it will be all automatically converted into the next line. ये क्या करता है, जो जैसे ही अगर एरिया से बाहर कोई भी लाइन, कोई भी टेक्स्ट जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसे डायरेक्टली दूसरे लाइन में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज़ द फीचर, दैट मीन्स कि वर्ड रैप जैसे ही अपने एरिया को क्रॉस करेगा, देन एंटर की अपने आप प्रेस हो जाता है, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। दैट मीन्स इन द शॉर्ट लाइन, इन द पैराग्राफ और क्रिएट अ ब्लैंक लाइन, यानी कि ये क्या करता है, एंटर की से हम लोग ये सारी चीज़ें करती है। लेकिन जब वर्ड रैप फीचर्स अप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इंड से, लाइन के इंड से ऑटोमेटिकली वो दूसरे लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ there are some non-printing characters, and you all know about the non-printing characters, that type of character that are not into appeared into the printing area. वो character, वो की जो कि printing area में नहीं आते हैं, जो print में नहीं काम आते हैं, यानी अगर उसकी को हम प्रेस करेंगे तो उसका कोई रोल नहीं है हमारे में प्रिंट करने के लिए, तो वैसे जो कैरेक्टर हैं उसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। लाइक स्पेस बार, इंटर कीज, टैब कीज, दीज आर द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ये सारे क्या होते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स कि वाइल वी आर प्रिंटिंग, दैन दीज कीज आर नॉट अपियर्ड, दीज कीज आर नॉट प्रिंटिंग इन टू द लाइक डॉक्यूमेंट, दिस प्रिंटिंग आर दीज कीज आर नॉट प्रिंटेड इन टू द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं होता है। सो देयर इज ऑप्शन इन टू द स्टैंडर्ड टूल बार, दैट इज यू कैन जस्ट शो एंड हाइड द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। जो होता है हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो और हाइड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में एक ऑप्शन है जहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक अपोजिट पी टाइप का एक आइकन होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है उसे शो और हाइड करते हैं। ये एक कर्सर टाइप का बन जाता है व्हेन वी विल जस्ट शो द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, देन ये अपोजिट पी टाइप का एक कर्सर बन जाता है। और जितने भी स्पेसेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जितनी बार हम लोग ये कीज़ प्रेस करते हैं, उतने सारे जो वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ भी प्रिंटिंग कैरेक्टर्स नहीं है वहाँ पे ये जो पी है ये अपने आप ऑलरेडी आ जाता है। बट ये क्या करता है, प्रिंट करने के दौरान ये प्रिंट में अपीयर नहीं होता है। सो दिस इज़ द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, उसे ही हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नाउ the next topic, that is saving a document. तो आई होप कि you all know about that how to save a document, हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, तो ये सबको शायद पता होगा। सो द शॉर्टकट की, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एस। सो दिस वन इज़ अ शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट। ये शॉर्टकट सेव डॉक्यूमेंट को सेव करने का ये शॉर्टकट की है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ लाइक अ बेसिक प्रोसेस, जस्ट गो टू द फाइल मेनू and when you click on the file menu, then there is a two option, that is a save and save as document. so वहाँ पे दो ऑप्शन होता है, किसका किसका, सेव और सेव एज का। so when you are save the document into the first time, then you can click on the save option, and when you just save the document, saved document, and you can just save that particular document to the different area, different path, then you can just choose the save as document, save as option। वहाँ पे save as, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर सेम डॉक्यूमेंट को दूसरे जगह सेव करना है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, दैट टाइम वी यूज़ द सेव ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग द सेव डॉक्यूमेंट, then a dialog box appear, that is a save as dialog box, and there is a path, you can just choose the path of the file where you want to save the document,
and after that the main thing that we have to just choose the first one, that is the file type and the file name. So while we just saving the document, then we have to just choose the file name. So write the file name and then choose the file type. उसके बाद क्या करना है, हमें फाइल नेम चूज करना है, then क्या करना है, फाइल टाइप चूज कर लेना है. So while we choosing the file type, this is the main thing, and by default file type that is a .odt. ये जो by default जो file type होता है उसका extension क्या होता है, .odt. ODF text document, that is a file type name, and the extension that is a .odt. जब भी हम document को save करते हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .odt होता है. ये बात याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है. ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज द नेम ऑफ द फाइल टाइप. ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट नेम है फाइल टाइप का. एंड जो .odt होता है, .odt इज द एक्सटेंशन वाइल वी सेविंग द डॉक्यूमेंट. जब भी हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो ये जो .odt है ये फाइल का एक्सटेंशन होता है. तो आई होप सबका क्लियर होना चाहिए. सो नाउ सेव करने के तरीके को हमने देख लिया, कैसे हम लोग सेव करते हैं. एक बार फिर से रिपीट कर दें. सो फर्स्ट दैट यू हैव टू जस्ट गो टू द फाइल मेनू, देन देयर इज अ सेव ऑप्शन. सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन अ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड, दैट इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स. And after that you have to just choose the path. That means ki where you want to just save the document, you have to just locate the location. So like when you want to just save the file into the D drive, C drive, E drive, F drive, whatever the drive that is in your system, then you can just choose the drive and the folder where you want to save that particular document. Then you have to just write the file name and choose the file type. Otherwise by default file type, you know about that, .odt is the by default file type. So just skip the file type, वहाँ file type को छोड़ देना है. अगर हमें दूसरे file type को देना होगा तभी हम file type दूसरा देंगे, अदरवाइज वो by default file type वही रह जाएगा. एंड नाउ क्लिक टू द सेव ऑप्शन. जैसे हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. Now the next topic, that is closing a document. And when we creating the document, then by mistakenly or by our mood, when we click on the close button that are appeared into the right upper side of the screen, that are appeared into the title bar also. टाइटल बार में राइट साइड में अपीयर होता है क्लोज बटन. सो अगर हम लोग उस क्लोज बटन पे या किसी भी क्लोज पे, फाइल में जाके एग्जिट पे अगर क्लिक करते हैं तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं रहता है तो क्या होता है, उसके बाद एक ऑप्शन अपीयर होता है. एंड दैट ऑप्शन कंटेन्स द थ्री option like a save, discard and the cancel. The three option appeared into your screen, that is a save, discard and the cancel. So when the like a file not like a save, then you have to just save the document, or otherwise if you don't want to save the document, then you can just choose the discard option. अगर आप उस डॉक्यूमेंट को हम सेव नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली वो क्लोज कर देना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट चूज द डिस्कार्ड ऑप्शन. और अगर बाई मिस्टेकली क्लोज हो रहा है और हम उसे सेव करना चाहते हैं, दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन. And after clicking the save button, the process will be same, like a dialog box appear, that is a save as dialog box. Now choose the location of your document where you want to just save the file, and now write the file name and the file type, एंड देन क्लिक टू सेव ऑप्शन. वहाँ पे क्या करना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो हमारे उस कंप्यूटर में, हमारे उस लैपटॉप में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. नाउ एग्जिस्टिंग राइटर, अगर हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग नॉट एग्जिटिंग, अगर हमें राइटर से एग्जिट करना है, सो नाउ गो टू द फाइल मेनू, देन देयर इज ऑप्शन ऑफ एग्जिट. क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है और वहाँ से एग्जिट पे क्लिक कर देना है. जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करोगे, देन यू कैन जस्ट एग्जिट इनटू द वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर यानी ओपन ऑफिस राइटर से क्या होगे, तुम वहाँ से एग्जिट हो जाओगे, यानी कि ख़त्म हो जाएगा वो ओपन ऑफिस राइटर जो है वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. सो दिस इज द सम लाइक topics that are like needed while we just creating the document into the open office writer. So now there are some word processing terminology. word processing कुछ terminology है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं. So the first one, that is the margins and column. So what is margins and what is column? So margins and column, there are like different things. Margins, that means into the margins we all know about that the distance between the
एज ऑफ द पेपर एंड द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अ मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? डॉक्यूमेंट जो पेज होता है, पेज के किनारे से लेकर के जहाँ से डॉक्यूमेंट का जहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू होता है वहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्लियर है? यानी कि जहाँ पेज के एज से, पेज के कॉर्नर से टेक्स्ट लिखने तक के बीच की दूरी कहलाती है मार्जिन। सो दैट इज अ मार्जिन। सो देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन, वी ऑल नो अबाउट दैट। दिस वन शोज द अलाइनमेंट्स। ये क्या होता है? अलाइनमेंट होता है। जनरली हम लोग पहले मार्जिन्स के बारे में देख लें, फिर हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। तो मार्जिन्स क्या होता है? लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एज ऑफ द पेज एंड द स्टार्टिंग टेक्स्ट। लेफ्ट साइड से जो पेज का एज होता है और स्टार्टिंग टेक्स्ट होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं। राइट मार्जिन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइक राइट एज ऑफ द पेज एंड द स्टार्टिंग टेक्स्ट और द एंडिंग टेक्स्ट ऑल्सो, जहाँ से टेक्स्ट एंड कर रहा है वहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं राइट मार्जिन। टॉप मार्जिन, द सेम थिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइक टेक्स्ट एंड द टॉप एज ऑफ द पेपर। टेक्स्ट और टॉप एज ऑफ द पेपर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग टॉप मार्जिन। एंड द बॉटम, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम एज एंड द टेक्स्ट ऑफ द पेपर। उस पेपर के बॉटम एज और टेक्स्ट के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? bottom margin. So these are the some like 4 types of margin that are appeared, that are set while we just creating the document. जब हम लोग डॉक्यूमेंट को सेट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उस कंडीशन में हमें ये मार्जिन्स को सेट करना जरूरी होता है। नाउ द सेम, द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ कॉलम, एंड यू ऑल नो अबाउट दैट व्हाट इज द यूज ऑफ द कॉलम। So into the columns we can arrange the text, written text, into the different types of columns like a newspaper. You all know about the newspaper. Each and every news arranged with a different types of columns. हर जो न्यूज़ होता है वो क्या होता है? एक डिफरेंट टाइप से पेज एक ही होता है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट कॉलम्स के अनुसार अरेंज होता है। कहीं पे इमेज होता है, कहीं पे टेक्स्ट होता है, कहीं पे बोल्ड टेक्स्ट होता है, कहीं पे छोटा टेक्स्ट होता है, यानी कि विदाउट बोल्ड जो टेक्स्ट होता है, जो रेगुलर टेक्स्ट बोलते हैं वो होता है। ठीक है, कहीं पे कुछ चार्ट्स बने हुए होते हैं। तो यानी कि एक पेपर में क्या होता है? बहुत सारे जो डिज़ाइनिंग के पार्ट्स कह सकते हो, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, चार्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी डिजाइंस वहाँ पे बनी हुई होती है। तो ये सारे के सारे जो अरेंज होते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कॉलम। ये सारे एक कॉलम वाइज अरेंज होते हैं, यानी कि एक कॉलम यहाँ जिसमें टेक्स्ट लिखाएगा, एक कॉलम यहाँ जिसमें इमेज आएगा, एक कॉलम इधर जिसमें तुम्हारा चार्ट आएगा। यानी कि जो पूरे के पूरे पेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप से कॉलम वाइज बटा होता है। और वी कैन जस्ट पुट अप द टेक्स्ट और द इमेज और द चार्ट्स, वॉट एवर वी वॉन्ट टू जस्ट पुट अप, then we can arrange the like all types of things into the same paper। उस सेम पेपर में हम लोग अलग अलग सेक्शन बना के क्या कर सकते हैं? वो सारे के सारे टेक्स्ट को यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज आर द मेनली यूज ऑफ कॉलम्स। ये क्या होता है? यूज़ है कॉलम्स का, यानी इस वे में हम लोग कॉलम को अरेंज करते हैं। तो आई होप सबका क्लियर है। मार्जिन्स भी हमने देखा, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की चीज़ें देखेंगे। तो आई होप सबका क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इससे रिलेटेड। और अदरवाइज़ कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो यू नो अबाउट दैट, व्हाट यू डू, क्या करना है सबको पता है। जस्ट यू कैन जस्ट कॉल मी और द टेक्स्ट मी एंड जस्ट सेंड योर like questions, queries and then I will give the answer। यह क्या करना है? अपने जो भी क्वेरीज है, अपने क्वेश्चंस को क्या करना है? मुझे सेंड करने हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है मुझे कॉल करके पूछ लेना है या टेक्स्ट कर देना है, मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर देना है। जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड, उसके बाद मैं आपको वो जो क्वेरीज है उससे रिलेटेड आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। सो आई होप सबका क्लियर है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।